this lecture. Yes. Now it is started. Anyway. Okay. अरे सर मैंने होस्ट Yes, yes, sir. Got it. अब ये start हो गया. ओके Okay. Okay. Thank you. ओके ओके थैंक Thank you. Thank you. Okay. Now, after this interesting that is introduction, right? तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी नोमेनक्लेचर की? सोर्स से, कि जहां से वो ओरिजिन हुआ वहां से हमने शुरू कर दिया. तो दीज आर द कॉमन नेम्स और ट्राइबल नेम्स, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड. अब मैं स्लोली आगे बढ़ता हूँ कॉन्सेप्ट में, डीप में जाते हैं बच्चे से. ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था, हो गया. नाउ ऑलराइट, नाउ कॉमन नेम बेस्ड ऑन रेडिकल्स, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. ठीक है, जिसको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता वो यहाँ से सब कुछ सीख सकता है इस लेक्चर से. आई मीन जो आगे रेडिकल बेस से चलेगा, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है माय डियर? वी कैन एक्सप्लेन द नेम ऑन बेसिस ऑफ रेडिकल्स. ओके, हम रेडिकल के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट माय डियर? तो रेडिकल बेस पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल. व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रेडिकल बाय द वे? सो हियर इज, दैट इज कार्बन. अटेंशन प्लीज, मैं भी स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, सो प्लीज रेस्ट एश्योर्ड. 1 मिनट देखो आप इसको. So first of all, we have to replace that is I'm talking about here substitution. All right, minus hydrogen plus G, any kind of group. Okay, my dear. So here is, that is replacement of proton by any kind of functional group as you wish. Okay, my dear. ठीक है, as you wish. So yes, please. This one is the any kind of functional group you desire. जो भी आपका मन करे आप ले सकते हो my dear. So this one is the functional group. Functional group. And what about it by the way? ये क्या है? Right? This species is, that is side chain of hydrocarbon. Side chain of hydrocarbon, isn't it? Side chain of hydrocarbon. And this side chain of hydrocarbon, yes please, is known as, yes my dear, that is radical. ऑलराइट, कुछ नहीं है, रेडिकल वही है. ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है उसी को हम बोल रहे हैं, दैट इज वी आर क्लेमिंग इट एज, दैट इज रेडिकल. ओके, सो एज यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज, हाइड्रोकार्बन सिस्टम, राइट, वी कैन डिवाइड हाइड्रोकार्बन इनटू फर्दर 3 कैटेगरीज. एल्केन्स, राइट, एल्कीन्स, एल्काइंस. एम आई राइट हियर? इतनी सारी कैटेगरीज होती है हमारे पास. ठीक है, so what about the radical now? It is the, that is the side chain, right? So radical एक side chain है. We can also say a little bit about it, that is it can affect or influence the physical properties, right? Please attention. Factors affecting पढ़ते हो ना, factors affecting boiling points, melting points. Am I right? We'll talk about all of these terms in case of hydrocarbon chemistry. All right. So it, that is it affects, yes please, the physical properties, the physical properties of, yes please, अभिनव ये स्क्रीन पे लिखना बंद करो. You are writing something here, अभिनव. Okay, thank you. Yes, it affects the physical properties of, yes my dear, an organic compound. ठीक है, तो आप लोग क्लेमिंग करते रहते हो. और एलिमेंट में कैसे डिफरेंस करेंगे? हाँ, why not? Radical is the side chain of hydrocarbon, and another type of term is known as, that is known as free radical. I hope so आपको उसमें confusion हो रहा है. Free. So there is a huge difference in between free radical and radical. I'm talking about radical only, my dear, not free radical. So free radical system, that is consisting always, that is a single electron system, and it is highly reactive. Okay, it is an intermediate by the way, right my dear? It is highly reactive. All right. So radical में और free radical में difference है. We are talking about radical. तो सर हम only. ये कह सकते हैं Radical, जो हाईली रिएक्टिव जो होंगे वो रेडिकल होंगे? no, हाँ obviously, but there is a huge difference.
because radical system, that is free radical system consisting only single electron, right? And free radical is an intermediate, right? We will talk about it in case of reactive intermediates. So it is an intermediate, all right my dear, ये intermediate होता है, ठीक है, that is known as the free radical. But we are talking about radical, that is the side chain of hydrocarbon that is formed by the replacement of one or more protons from the parent compound. ऑलराइट, आप चेक करो इसको, भाई मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है ना बच्चे, राइट? यस सर। मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है बाय द ग्रुप, एनी काइंड ऑफ ग्रुप, ओके, बस फिर क्वाइट सिंपल है. ऑलराइट देन, सो फर्स्ट फैक्टर दैट इज इट कैन अफेक्ट द physical properties such as you know very well, that is the boiling point and my dear melting points. तो आप लोग क्रैम करते रहते हो कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, राइट? सो अगर हम लॉजिक लगाए सो देयर इज नो नीड टू क्रैम एट ऑल. ऑलराइट माय डियर, वी कैन अंडरस्टैंड इट with the help of radical chain, right? That is side chain of hydrocarbon. All right then, so ठीक है, after this that is classification now. Okay, so now classification of radicals. So please attention, classification of radicals. Classification. So radical chain may be that is saturated or unsaturated, right my dear? It depends upon the condition. What about the parent compound जो आप ले रहे हो, all right? So we can classify that is radical system further into a few subcategories. So first category is that is aliphatic, right? Aliphatic radicals, then aromatic radicals, all right my dear? Aromatic radicals, and then alicyclic. I hope so. From the classification of hydrocarbons, yes my dear, with respect to the structure, आपको पता होगा, समझ में आ रहा होगा सब. What is aliphatic, what is aromatic, what about the alicyclic, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल्स के साथ. ऑलराइट, alicyclic. Okay my dear, so there are three kinds of radicals, that is aliphatic, aromatic and acyclic. ऑलराइट, सो ठीक है, इनको हमने फर्दर आई मीन कैटेगराइज कर दिया है, दैट इज ए बी सी वट एवर, कुछ भी, ठीक है. नाउ हियर वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई कैटेगरी नंबर ए, दैट इज एलिफेटिक. वंस अगेन, दैट इज ए कैटेगरी एलिफेटिक. प्लीज पे अटेंशन, एलिफेटिक रेडिकल्स. ऑलराइट, further into three categories. Okay my dear, that is category number A, yes please, from alkanes. Please understand it, from alkane. All right, alkane means that is consisting carbon single bond carbon. इस लेक्चर में हाइड्रोकार्बन का काफी पोर्शन कवर कर लूंगा, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन, ये मैं हाइड्रोकार्बन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक? नोमेनक्लेचर या व्हाटएवर, क्लासिफिकेशन, जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. सो प्लीज राइट, पे अटेंशन. सो फ्रॉम एल्केन, ऑलराइट, फ्रॉम एल्केन, व्हाट अबाउट द जनरल फॉर्मूला? प्लीज हरी अप. जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n+2. So what about the new kind of formula? By the replacement of one hydrogen, ultimately we get CnH2n+1. Isn't it? जल्दी बताओ मुझे, यही आएगा ना? Yes, भाई sir. एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया ना, यस सर। वो वेरी सिंपल है वो. एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला नाउ इट इज नोन एज, यस माय डियर, एल्काइल. जो आप क्लेम करते हो ना बार बार ये एल्काइल है, नाउ इट इज नोन एज एल्काइल. So please pay attention, it is quite important. Now once again B, that is from, yes please, alkene, right? Alkene consisting C double bond C, that is a double bond system. All right, so ane we have used, that is ane for alkane, ene for alkene, ine for alkyne. Am I right? सो IUPAC नोमेनक्लेचर भी मैं हैंड टू हैंड लेके चलूंगा.
सो देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। अगर आपने यस बोला तो मैं आईयूपीएससी भी एंड टू एंड ले लूंगा इसका, नो इशू एट ऑल, राइट माय डियर। सो प्लीज पे अटेंशन, ऐसा नहीं है बस मैं जनरल नेम ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं फुल डिटेल लूंगा, रेस्ट अश्योर्ड। नाउ CnH2n, hurry up now please. That is the general formula for alkene, am I right? But after replacement of one hydrogen, now a new kind of formula, yes my dear, -1. CnH2n minus 1, am I right? And this type of, yes my dear, known as, this type of radical is known as alkenyl. So this one is alkyl yl, right? And this one is enyl, all right? So please understand, काफी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, है ना, ये अल्काइल है, अल्किनाइल है, अल्काइनाइल है, व्हाट। सो आप एक बार देख लो इसको, राइट माय डियर। थर्ड कैटेगरी इज दैट इज फ्रॉम alkyne, all right? What about the recognition point? That is a triple bond, okay? That is a triple bond, C triple bond C, all right? And what about the general formula? Yes please, CnH2n, yes please, -2. So we can make, yes please, any radical. So now formula ultimately becomes CnH2n, yes please, minus what? 3. Yes please, -3. And this one is known as alkynyl. बस हो गया फाइनल, राइट? alkynyl, that's it, right? alkynyl। तो जो ALK टर्म है वो तो कॉमन है सब में, राइट माय डियर। एनी काइंड ऑफ एल्काइल दैट इज ALK, ये तो कॉमन है सब में, राइट? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ दैट इज सफिक्स का, राइट माय डियर। सो जो IUPAC है उसमें क्या करते हो आप? आई मीन व्हाट अबाउट द रोल ऑफ दीज सफिक्स इन IUPAC? सो IUPAC में हम इनको बोलते हैं माय डियर प्राइमरी सफिक्स। तो प्लीज आप अटेंशन दो, मैं यहाँ पे IUPAC भी लेके चलूंगा, राइट? कंबाइन करने वाला हूँ मैं। सो दैट इज नोन एज प्राइमरी सफिक्स इन IUPAC सिस्टम, दैट इज IUPAC सिस्टम, राइट? सो IUPAC सिस्टम में हम इनको क्या बोलेंगे? दैट इज प्राइमरी सफिक्स। सो वी हैव टू यूज प्राइमरी सफिक्स एन, then ene, then ine, respectively for alkanes, alkenes and alkynes. So ये IUPAC सिस्टम है, राइट? ओके, सो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एनीवे, नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन विद अ फ्यू एग्जांपल्स। अब मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ, काफी एग्जांपल मैं दूंगा, जब तक आप मुझे यस नहीं बोलोगे मैं एग्जांपल देता रहूंगा। अगर एक दो एग्जांपल से समझ में आता है, लेट्स मूव अहेड, राइट, विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। क्योंकि हमें क्या करना है, बस रिवीजन देना है पूरा, राइट? सो फर्स्ट कैटेगरी इज दैट इज एलिफेटिक रेडिकल्स। सो मैं न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे, दैट इज एन, आइसो, नियो, एमाइल, ऑलराइट? काफी टर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, सो प्लीज पे अटेंशन। एलिफेटिक रेडिकल्स, ऑलराइट? एलिफेटिक रेडिकल में भी कैटेगरी नंबर ए, that is known as alkyl radicals, okay? Alkyl radicals, okay my dear? So what about the common name, by the way, right? Common name, right? So common name के लिए मैं करना क्या पड़ेगा? That is alk plus yl, quite simple, alk plus yl बन गया alkyl, right? सो IUPAC में हम क्या करेंगे? जो IUPAC सिस्टम है मेरे पास, उसमें क्या डिफरेंस क्या एग्जैक्टली IUPAC सिस्टम में? इन केस ऑफ IUPAC वी नीड वर्ड रूट, राइट माय डियर? आई होप सो नाउ यू आर फेमिलियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड रूट। वर्ड रूट दैट इज फॉर वन कार्बन, दैट इज मेथ, रिमेंबर, टू कार्बन एथ, राइट? अब तो सब कुछ ये क्रैम हो गया होगा। 3 कार्बन मेथ एथ, प्रोप 4 कार्बन ब्यूट, ऑलराइट? 5 कार्बन यूनिट दैट इज पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, राइट? सो ये जो वर्ड रूट है ये कॉमन है। IUPAC में भी इसी को यूज करेंगे हम, कॉमन नेम में भी इसी को यूज करेंगे, राइट माय डियर?
right? So now it is quite important to introduce that is n-isoneoamyl active terms, all right? काफी terms मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, so please बस मुझे उसमें बताना समझ में आया कि नहीं, ये तो कॉमन था, सबको पता है. So now let's talk about that is first example मीथेन CH4. ओके तो IUPAC में इसका नाम क्या है? दैट इज मेथ प्लस एन, सो बन गया मीथेन, एम राइट? मीथेन IUPAC सिस्टम है, माइनस H बना क्या? मीथेन से क्या बनेगा जल्दी बताओ प्लीज? मिथाइल. ओके यस, एंड मिथाइल abbreviation you must be kept in mind, all right, that is ME. so please pay attention. अगर आप मुझे यहाँ पे यस बोल दोगे कि हाँ इतना समझ में आ गया, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा, राइट? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम थोड़ा ही है. ओके सो CH3 that is ethane, so it is IUPAC name, right my dear? so ethane से क्या बनेगा? that is CH2CH3, yes, ethyl, and so on so forth. I hope so you got it what I'm talking about. okay my Yes, dear, Yes, sir. so this one is हाइड्रोजन ethyl. रिप्लेस होते जा रहे हैं. बहुत सिंपल है, और क्या, कुछ भी नहीं है यार, ये बहुत सिंपल हो गया. तो यहाँ से आप 10th तक क्या 12th तक क्या सब जगह बना सकते हो आप सारे नेम. चलो अब मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको बहुत अच्छे से. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एन आइसो, राइट? ओके टर्शियरी व्हाटएवर, हालांकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से हम पहले ही फेमिलियर, तो आई होप सो यू आर नाउ फेमिलियर. दैट इज एब्रीविएशन. नेक्स्ट टाइम क्या होगी बताओ जल्दी से, अगर मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क दे दूं आपको, थर्ड वन करोगे इसको? मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? PR, दैट इज नोन एज प्रोपाइल. फिर क्या लिखने वाला हूँ बोलो? Butyl. ब्यूटाइल, दैट इज एब्रिविएशन BU, ठीक है? BU को क्या बोलोगे? ब्यूटाइल. ओके PR को प्रोपाइल. PE ओके माय डियर, ठीक है? पेंट का P. यस प्लीज, हाँ P आ जाएगा. ओके सो ठीक है. नाउ अप नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट इज प्रोपेन. ओके CH3 CH2 CH3. okay my dear, this one is the propane, so please pay attention. अब मैं थोड़ा स्पीड अप मेथड में चलूंगा. here is that is minus H. okay so we can make radical into two ways, all right? first one is that is CH3 CH2. थोड़ी देर में मैं लाइन फार्मूला यूज करूंगा, इसको हटा दूंगा सबको. ओके सो मेथ 8 प्रोप ब्यूट, सॉरी मेथ 8 प्रोप, ये तो 3 कार्बन यूनिट है. ये अटैचमेंट शो कर रहा हूं मैं यहाँ पे. व्हाट आई एम शोइंग हियर दैट इज अटैचमेंट, ऑलराइट? ये मैंने अटैचमेंट शो किया. सो नेम क्या हो जाएगा इसका प्लीज जल्दी से बताओ? N प्रोपाइल. फर्स्ट टर्म हियर आई एम यूजिंग दैट इज N. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म N? N क्या होता है माय डियर? दैट इज नॉर्मल चेन को बोलते हैं हम N, और जो नॉर्मल चेन होती है मैं उसी को बोलता हूं दैट इज स्ट्रेट चेन. जो एकदम स्ट्रेट जाएगी ना, स्ट्रेट सीधे, उसको हम बोलते हैं दैट इज नॉर्मल चेन, राइट? तो उससे पहले मुझे क्या लिखना है? दैट इज N. ये आप देख सकते हो स्ट्रेट चेन है. और जैसे अब ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होगी, राइट? अब मैं ब्रांचिंग करने वाला हूं, जैसे ही ब्रांचिंग स्टार्ट होगी तो N डिसअपियर हो जाएगा, राइट? एंड वी हैव टू यूज न्यू टर्म्स सच एज दैट इज सेकेंडरी, tertiary, right my dear, or iso or neo. okay so let's understand what exactly is the difference. so आप second इसमें यहाँ पे देख सकते हो, here is CH3, that is CH, and here is CH3, all right? so attachment कहाँ से हो गया इस बार? यहाँ से, ये attachment है, ये attachment show कर रहा हूँ मैं, ये जो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, all right? I'm showing here that is attachment. so what about the term? What about that term we have to introduce? क्या है ये बताओ जल्दी से? That is iso. Iso meth 8 prop, isopropyl. Got it? So we can use iso, right, as well as secondary. So this one is secondary propyl. Remember? जल्दी बता दो yes or no. ठीक है? Yes, sir. ठीक है ना? सेकेंडरी पता है ना आपको? ऑन बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑलराइट? तो सिंगल प्रोटॉन अटैच है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप. सो दैट इज सेकेंडरी. सिंगल भी ना होता तो क्या बोलते? टर्शियरी. एम आई राइट? सो आइसोप्रोपाइल वी कैन आल्सो कॉल इट एज सेकेंडरी प्रोपाइल. गॉट इट? सो नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो.
नेक्स्ट एग्जांपल चलो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ नियो टर्म्स को. व्हाट इज नियो? ओके, सो आइसोब्यूटेन के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट द आइसोब्यूटेन? चलो एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं. अब मैं लाइन फार्मूला यूज करूंगा. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. हियर इज दैट इज CH3, once again CH3, so it is time consuming, am I right? So this one is known as isobutane. What? Isobutane, because consisting 4 carbon atoms, 1 2 3 4. All right my dear, so हाइड्रोजन को मैंने यहां से I mean रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, आफ्टर रिप्लेसमेंट we can, yes my dear, draw it as CH3. Here is the CH. Okay, here is the CH2 attachment, and here is CH3. Okay, all right. और मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ. दैट इज CH3, CH3. Here is the CH3. All सर right. ये टर्शरी ब्यूटेनाइल हो जाएगा. हाँ, कौन सा टर्शरी है? फर्स्ट और सेकंड? हाँ, दिस वन इज द फर्स्ट, Sir, दिस वन इज द सेकंड. Which one is second tertiary one. by the second? Second. Well, yes, yes indeed. So this one is known as isobutyl. What? Isobutyl. All right, and this one is known as, yes my dear, tertiary butyl. So अब से हम क्या करेंगे? इसको लाइन फार्मूला से शो करेंगे. ये CH3 लिखना बंद कर दो. Am I right? क्योंकि ठीक थे तो बच्चों वाले काम थे, राइट? अब तो बड़े हो गए आप. चलो हटाओ, ये हो गया यहाँ से. Am I right? This one is. Are you getting? Okay my dear. So from now on मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा always. ठीक है, ये CH3 नहीं लिखेंगे हम. ठीक है, okay then. So up next is introduction of that is amyl. अब ये amyl क्या है? Let us see. Okay, what is amyl by the way? What is active? What is chiral? So जितनी टर्म्स हैं आप सबसे पहले इनको I mean फेमिलियर हो जाओ, जितनी भी टर्म्स हैं. सो एन पेंटेन में यहाँ पे लिख रहा हूँ. मैंने यहाँ पे लिख दिया एन पेंटेन. सबको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है? कंसिस्टिंग 5 कार्बन एटम, राइट? स्टेट चेन आई एम टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट माय डियर. ठीक है, चलो फिर लाइन फार्मूला बना दो जल्दी से. कैसे बन जाएगा? 1 2 3 4 5. ओके, सो यहां से हो जाएगा अटैचमेंट. दिस वन इज नोन एज, यस माय डियर, एन पेंटाइल. यस और नो? जो एन पेंटाइल है उसी को मैं बोलता हूं एन एमाइल. सो एमाइल इज नथिंग, इट इज एक्विवेलेंट टू पेंटाइल. बस. तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यार, ये एमाइल क्या है, राइट? सो इट इज ऑल्सो नोन एज एन एमाइल. सो एमाइल इज नथिंग कंसिस्टिंग 5 कार्बन यूनिट. एम आई राइट? सो एमाइल बोलो आप, पेंटाइल बोलो, एक ही बात है. ठीक, देयर इज नो एग्जैक्ट डिफरेंस बाय द वे. ओके देन, सो इसको हम इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं माय डियर. ऑलराइट, 1 2 3 4 5. ऑलराइट, दिस वन लाइक दिस नाउ. सो इट इज ऑल्सो नोन एज, यस माय डियर, आइसो, यस प्लीज, एमाइल. ओके, isoamyl. Am I right? Okay, so this was known as isoamyl. So what about active by the way? What about active? Chiral की please define the term chiral. What is meant by the term chiral? चलो बताओ जल्दी से, क्या होता है chiral? आइसोमेरिज्म से तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा ना. आइसोमेरिज्म मैंने समझाया भी था क्या होता है आइसोमर्स. Having same molecular formulas but different, yes please, different structures, remember? चलो, हाँ तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे. इसको माय डियर हम क्लेम करेंगे दैट इज नोन एज, यस प्लीज, एक्टिव. व्हाट? क्या बोलेंगे इसको? इट इज सेड टू बी दैट इज एक्टिव एमाइल. So what is active here by the way? Active is also known as, that is chiral. Am I right here? Okay. So chiral, what is chiral? अरे कुछ तो बताओ. नहीं पता बिल्कुल भी? ऐसा कैसे हो सकता है? Having 4 different groups. इतना तो पता ही होगा. Having 4, yes my dear, different groups. Okay. Having 4 different groups or atoms.
इसको हम बोलते हैं दैट इज कायरल, राइट? सो प्लीज कैन यू सी हियर दिस का व्हाट अबाउट दिस कार्बन? दिस कार्बन कंसिस्टिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, एम आई राइट? एक तो मिथाइल है, दूसरा इथाइल है, एम आई राइट? फिर थर्ड ये चेन है, फोर्थ हाइड्रोजन है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज कायरल और एक्टिव। गॉट इट? ओके माय डियर, ठीक है? तो प्लीज आप अटेंशन पे करो। Yes. ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, बहुत कॉमन है। बट एक बार तो मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है? क्योंकि बाद में आप ये ना हो कि सर मुझे इसका नहीं पता था, ठीक है ना? हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत इजी लग रहा होगी क्योंकि उनको पता होगा, राइट? बट प्लीज माय डियर, आप एक बार इसको रिवाइज ही कर लो, ठीक है? इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम बार बार इसको रिवाइज करेंगे, सिर्फ वन टाइम ओनली, ठीक? तो पहला लास्ट लेक्चर समझ लो बच्चे, ओके? दोबारा मैं इस बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलूंगा स्पीड अप मैनर में। सो इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज एन, व्हाट इज आइसो, व्हाट इज एमाइल, व्हाट इज कायरल। इज दैट ओके सो फार और नॉट? समझ आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आप माय डियर आप पूछते भी रहो। Whatever you find mind regarding the concept, please break the silence without taking even a bit of hesitation, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप कैसा भी क्वेश्चन करो, हम बेसिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई एडवांस नहीं Sir? चल रहा अभी, सिर्फ बेसिक। यस माय डियर। सर जैसे सेकेंडरी में होता है कि जो सेकंड वाले कार्बन आटम से अटैच्ड होते हैं और टर्शरी में जो एक कार्बन आटम 3 से अटैच होता है, तो फिर आइसो का क्या कैरेक्टर है ऐसा जिससे कि याद कर सकते हैं? कुछ नहीं, आइसो में भी ऐसे होता है कि एडिशनल, ये जो यूनिट आप देख रही हो ना, ये वाला, दिस वन, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन फॉर आइसो, दैट्स इट, ठीक है? सो इन सम केसेस आइसो इज एक्विवेलेंट टू सेकेंडरी, एम आई राइट? बिल्कुल है वो, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था अभी, ओके? यस। राइट? सो मैं भी एग्जांपल ले लेता हूँ। सो कायरलिटी से इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कायरल। सो देखो मैं भी बता देता हूँ आपको एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छा, ठीक है? ओके बच्चे, as I'm claiming here, that is a carbon atom known as chiral carbon atom if it consists 4 different atoms or yes my dear groups। so ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये समझ लो आपका आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया। ऑलराइट माय डियर, ये देख सकते हो आप, ओके? फिर मैं किसी ने मुझसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था, आई मीन कल कंफ्यूजन हो रहा था, मैं वो भी समझा देता हूँ, मुझे याद आ गया। चलो और बताओ, ओके माय डियर? सो मैंने यहाँ से देखो आइटम्स ले लिए, ये हाइड्रोजन है, ओके? ये ड्यूटीरियम है, ये ट्राइटियम है, एम आई राइट डियर? और ये मिथाइल है। सो दिस कार्बन एटम हियर, दिस कार्बन एटम, यस माय डियर, इज नोन एज, यस प्लीज, एक्टिव कार्बन। व्हाट? एक्टिव कार्बन, और यस प्लीज कायरल कार्बन, एम आई राइट? और स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक, दिस वन इज द मोर एडवांस टर्म वी आर यूजिंग नाउअडेज, ठीक है? जो एडवांसमेंट आता जाता है केमिस्ट्री में, न्यू टर्म्स का इंट्रोडक्शन होता जाता है, तो आप इसको कायरल बोलोगे, आप बिल्कुल सही हो। बट जो मॉडर्न सिस्टम है, आई मीन जब आप हायर लेवल पे पढ़ते हो या कोई रिसर्च पेपर पढ़ोगे या वॉट इस टाइप का कुछ एडवांस पढ़ोगे, सो आई मीन स्टीरियोजेनिक सेंटर वहां पे लिखा होगा, तो ये सिमिलर थी। ओके माय डियर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इतने सारे नेम से कंफ्यूजन रहता है चल क्या रहा है। ओके माय डियर, सो बट जब भी 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे आप उसको कायरल बोलेंगे, राइट? और कायरल सिस्टम को हम कैसे बोल सकते हैं? दैट इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज, यस माय डियर, 3D सिस्टम। दैट इज out of the four groups or atoms, 2 groups or atoms are present within the system, all right? या फिर within the line, within the plane, okay? And out of 4, 2 groups or atoms, yes my dear, present out of the plane। out of the plane मैंने अच्छे से समझाया था। out of the plane क्या होता है? ये प्लेन है मेरे पास, ओके? और ये यहाँ से 2 एटम्स है, तो 2 तो क्या हो गए, इस प्लेन में हो गए, जो मेरी पॉम है ये प्लेन में हो गए। ये जो अपर साइड आपको दिख रहा है ये क्या है? अबव द प्लेन। और ये जो बिलो साइड दिख रहा है ये क्या है? बिलो द प्लेन। क्वाइट सिंपल, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो जब भी मैं कायरल सिस्टम को लूंगा तो आई मीन एक 3D रिप्रेजेंटेशन शो करूंगा, जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, सपोज करो मैंने मिथाइल ट्राइटेरियम यहाँ पे लिया है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम यहाँ पे लिया, इट डजंट मैटर। सो दिस वन इज नोन एज द कायरल सिस्टम, right? So we will talk about it in case of isomerism,
ओके, दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म, राइट। और स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो जब एडवांस ज्यादा स्टडी होती है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। आई होप सो नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज काइरल, व्हाट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, राइट। एक्टिव सिस्टम, व्हाट क्लियर है। मैं वापस आऊंगा इन सारी टर्म्स पे, अभी तो बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था। ओके माय डियर, नाउ last term of this section, that is known as neo. So what is meant by the term neo? Okay, so let's take an example. So first example is this one. मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अभी, जो आप में से कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा था कल, में कुछ क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, सो हियर आई कैन रिप्रेजेंट दैट इज, चलो मैं मिथाइल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है माय डियर। अब ये CH3 हटा देते हैं, ओके, मिथाइल हुआ, दैट इज मिथाइल हुआ। इसको बोलेंगे हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर बाय द वे, दैट इज नोन एज नियोपेंटेन। समझ में आ रहा होगा सबको, ये पेंट क्या है, वी आर यूजिंग फॉर 5 कार्बन्स। एन क्या है, वी आर यूजिंग फॉर एल्केन, दैट इज हैविंग सिंगल बॉन्ड। सो इससे ज्यादा इजी क्या होगा, पेंट एन। बट व्हाट टाइप ऑफ पेंटेन इज दिस बाय द वे, इट इज अ काइंड ऑफ नियो, राइट। सो इसको हम नियो बोलते हैं। ओके माय डियर, सो आप यहां से क्या कर लोगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो आप। ओके, जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो कुछ बना, एंड दिस इज नोन एज, यस माय डियर, दैट इज अ रेडिकल। बट व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस रेडिकल नाउ, यस प्लीज, इट इज नियो पेंटाइल। जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा ना तो उसमें ऐसे ही आएगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन नियोपेंटाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म नियो बाय द वे, ठीक है। एनीवे, सो ये हो गया नियो। ओके माय डियर, तो आप इसको लाइन फार्मूला में कन्वर्ट कर दो। लाइन फार्मूला, नियो इज अ पोजीशन, राइट। नियो इज अ पोजीशन दैट इज वी कैन शो लाइक दिस। आप चेक करो, इसको नियो बोलते हो ना आप, ये पूरी यूनिट है ना बेटा, ये वाली, ये नियो इज नथिंग दैट इज कंसिस्टिंग 5 कार्बन एटम्स, एम आई राइट। तो ये टर्म्स है क्या, ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है बस। अगर मैं इसको स्टेट चेन कर दूंगा, स्टेट चेन 5 कार्बन का, तो उसको क्या बोलोगे, एन पेंटेन, राइट। ओके, उसी में 2 मिथाइल सिस्टम लगा दूंगा तो क्या बोलोगे, आइसोपेंटेन, एम आई राइट, और एमाइल। ओके, सो ये अरेंजमेंट है बस। ये जो यूनिट आप देख रहे हो, जो मैंने हाईलाइट की है, इसी को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज नियो। ओके, राइट माय डियर। सर सो जस्ट राइट द, हाँ माय डियर बोलो। सर चाहे कायरल वाला सिस्टम एक बार वापस समझा दोगे? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, और ठीक है। एक और डाउट आप बोलो पूछना बस। था, जैसे हाँ? अभी आपने बोला कि ये नियो का जो ये स्ट्रक्चर है वो डिसाइड कर रहा है कि हम वो नियो यूज कर रहे हैं। अगर इसी को हम यस इंडीड, प्लेनर इन सेंस सिंगल बॉन्ड लॉन्ग चेन में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसकी जगह एन भी यूज कर सकते ऑल राइट, ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखो ये रहा, मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट, एम राइट। सो 5 कार्बन यूनिट जब मैं बना दूंगा तो आई एम यूजिंग, आई कैन यूज इट, दैट इज एन। मैंने ऊपर अभी एग्जांपल लिया था ना, ठीक है। तो ये है क्या, अरेंजमेंट चल रहा है, राइट। व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट हियर, वो ब्रांच्ड अरेंजमेंट है या वो स्टेट चेन अरेंजमेंट है, व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट, एम आई राइट। So depending on the arrangement, we have to use the terms that is N, iso, neo, amyl, active, whatever. Okay? हाँ डियर बोलो। चलो ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल और नियोपेंटाइल क्लोराइड। चलो, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस। सर बट अगर हम नियोपेंटेन को अगर हम स्ट्रेट लाइन उसमें फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो उसका फॉर्मूला बदल नहीं जाएगा? कैसे बदल जाएगा, उसमें हाइड्रोजन का नंबर ही तो इधर उधर होगा, और क्या है, बोलो। कौन कह रहा है कि बदल जाएगा, चलो बनाना जरा, क्या बदलेगा इसमें, बताना जरा मुझे क्या बदलेगा। चलो यहाँ पे कर लो, क्या बदलोगे आप बताओ। बनाओ, ठीक है, शुरू करते हैं। देखो मैंने शुरू कर दिया। ओके बच्चे, ये हो गया मेथ 8 प्रॉप ब्यूट पेंट,
राइट, बन गया पेंटेन। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, दैट इज वी कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5। काउंट करना जरा कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, कुछ मैंने ऐड किया या रिमूव किया, देखना एक बार। यस सर, ये सेम है। यस सर, गॉट इट। सो फिर सो इट इज नोन एज माय डियर नाउ दैट इज एन पेंटेन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, राइट, माइन्यूट लगेंगे कुछ स्टूडेंट को कि सर पता नहीं क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं इतना। तो बस मैं एक ही बार बेसिक के बारे में बोलूंगा, फिर कभी नहीं, ठीक है। तो प्लीज जो भी आपके माइंड में है प्लीज लेट मी नो, ओके। बोलो, आप जितना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एन हो गया, एम राइट। फिर से मैंने इसको अरेंज कर दिया, ओके बेटा, अरेंज कर दिया, देखो ऐसे अरेंज कर दिया, ये रहा देखो। अब क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये हो गया, राइट, आइसो है ना। पेंट। यस प्लीज, आइसोपेंटाइल हो गया, आइसो एमाइल हो गया। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो मैंने कुछ किया थोड़ा, ये बस अरेंजमेंट चल रहा है। तो आधा कंफ्यूजन तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या, बस अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर इतना खौफ ज्यादा लगता है कि यार ये है क्या इतनी बड़ी बड़ी चीजें। तो कुछ नहीं है वो, बस कूल रहना है आपको सर एकदम। जितना कंप्रेस हो रहा है फिगर उतने ही नाम चेंज हो रहे हैं इनके। हाँ, नाम चेंज नहीं हो रहे, टर्म्स, स्टार्टिंग टर्म्स चेंज हो रही है, दैट इज एन आइसो हो गया, आइसो न्यू हो गया। एमाइल नियो। क्योंकि जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी ना, प्लीज यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, या तो आईपीएससी नेम देगा या फिर आपको कॉमन नेम देगा, ठीक है। और कॉमन Yes, नेम sir. जब आपको पता ही नहीं है यार नियो होता क्या है, तो बस फिर होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी, फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप फिर, क्यों भाई, ठीक है। तो प्लीज ये बहुत छोटी छोटी बातें, ऑब्वियसली ये छोटी बात है, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। समझ में आया कुछ, अब आगे बढ़ूं। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था, किसने क्वेश्चन किया था कल, चलो मैं इसको अभी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, रिवाइज कर देते हैं जल्दी से, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, ओके। मैंने इसको रिवाइज किया, मुझे नेम बताते रहना प्लीज। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज, यस प्लीज, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो, कॉम्पैक्ट बनाओ उसको। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे, C5H, हाउ मेनी H, 3 + 3 + 3 + 3, 12 ना, यस और नो, बोलो। यस Yes, अरे भाई मैंने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, चलो जरा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कल, हाँ ये हो गया, ठीक है, ओके माय डियर। फिर मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, Me4, यस प्लीज कार्बन, और यस माय डियर दैट इज CH3 होल 4, है ना, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन का एक वे है और कुछ भी तो नहीं है, राइट। You have to write down any kind of representation according to your own convenience. हमें जरूरत नहीं है किसी का हुक्म मतलब मानना है मुझे, राइट, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिखूं इसमें, जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा मैं वो करूंगा ना, अनटिल अनलेस आप मुझसे ना बोलो कि हमें ये कर, तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा ना माय डियर, वो चाहता क्या, ओके, राइट। सो देख सकते हो आप यहाँ पे CH3 होल 4, दैट इज C। अब ये तो एक ही बात होगी ना दोनों, बोलो जल्दी से, यस और नो, बताते रहो मुझे जल्दी जल्दी। ये हो Yes. गया, ठीक है। चलो नेम बताओ जरा जल्दी से, ये क्या है फिर बताना जरा मुझे, इसको क्या बोलोगे आप, मॉलिक्यूलर, यस माय डियर, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन बोलोगे या नहीं, यस और नो, यस सर। ओके माय डियर। इसको बताओ जरा क्या बोलोगे, बताना जरा, कंडेंस्ड, यस प्लीज, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो नेम तो ऐसे है ना, इतनी र्यूमर फैला रखी है मार्केट में कि यार पता नहीं क्या क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कुछ भी समझ नहीं आता। अरे किसने बोला समझ नहीं आता, बस एक बार आप बेसिक सुन लो अच्छे से, फिर देखना जरा स्पीड, ठीक है, राइट। तो कंडेंस्ड हो गया। अब कंडेंस्ड में एक नहीं दो वे में समझा सकता हूँ, या तो मैं मिथाइल फॉर्म ले सकता हूँ या फिर मैं CH3 फॉर्म ले सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बोलो जल्दी से, जल्दी बताते रहो, राइट, ओके। yes, sir. अब मैंने वंस अगेन मैंने क्या किया, अब इसको लाइन फॉर्मूला में ले गया, ये देखो आप प्लस साइन मैंने बना दिया, माय डियर इसको क्या बोलोगे आप, यस माय डियर प्लीज, लाइन रिप्रेजेंटेशन, ऑलराइट, लाइन रिप्रेजेंटेशन बना दिया, यस और नो, Yes. बना दिया लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो इतना सिंपल होता है, ये कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा फास्ट केमिस्ट्री आप कोई नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे ऐसे करूंगा मैं यूं जिगजैग मोशन, दैट्स इट, खत्म सब, ठीक है। सिर्फ मुझे फंक्शन ग्रुप लिखने में टाइम लगेगा, अदरवाइज स्पीड इतनी होती है ना ऐसे ऐसे करके, ठीक है।
मतलब 15 कार्बन यूनिट को मैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बना सकता हूँ। लेकिन अगर आप CH3 CH2 ऐसे लिखते जाओगे तो बस फिर ठीक है, सीख लिया केमिस्ट्री। ठीक है डियर, ओके। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, चलो रिवाइज कर लेते हैं, खत्म करो कहानी को। ठीक है, ओके माय डियर, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो अब ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन बन गया भाई? हाँ, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बाय द वे? कुछ हो थोड़ा ही रहा है रिप्रेजेंट। सर कायरल Yes, please. Yes, indeed. 3D. Not. It is not chiral, by the way, because all four groups are same here. Methyl, 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 methyl. So it is not chiral. You must be kept in mind. For chirality, right? A carbon atom, central carbon atom, must bear four different kinds of elements, right? It may be that is group or it may be that is atoms. It doesn't matter. Yes or no? So 3D representation है। ओके माय डियर, ये अबव बिलो देख के सर आपको काइनेटिक मुझे का अंदाजा लाइन नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन समझ नहीं आया। हाँ, तो लाइन में करना क्या है यार, एक क्रॉस को हम कैसे शो करते हैं? ये क्रॉस क्या है? ये जो क्रॉस होता है, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो क्रॉस होगा वो हमेशा शो करेगा कार्बन एटम। क्यों भाई? तो आप चेक करो ना, यही तो चीज है जो यहाँ पे लिखी है। चलो एक मैं और रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन और बनाता हूँ। कौन सी रिप्रेजेंटेशन बाकी है जल्दी बता दो। मॉलिक्यूलर भी हो गई, कंडेंस्ड भी हो गई, लाइन भी हो गई, 3D भी हो गई, और कौन सी बाकी है? लुईस बची बोलो। है सर, लुईस बची है। यस प्लीज, लुईस और कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। तो फिर बना दो उसको भी, क्या रखा इन बातों में। चलो ये बन गया, देखो अब मैं इसको बनाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। प्लीज पे अटेंशन, राइट? ये फर्स्ट और लास्ट एग्जांपल समझ लो बस आप, आइंदा से मैं इसको नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब एक बार इसको रिवाइज कर लो अच्छे से, राइट? आई होप सो, बहुत बड़ी बात अभी हमारे लिए नहीं बची है। हो गया क्लियर? चलो भाई जल्दी से बताओ, ये कार्बन बन गया, यहाँ पे ये भी कार्बन बन गया, ये भी कार्बन बन गया, राइट? ये सब कार्बन कार्बन आ गए। ऑलराइट माय डियर, ठीक है। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर लो आप। ठीक है, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो बस इस तरह से जो नींद आने वाला स्ट्रक्चर बनेगा कि बनाते बनाते नींद आ जाएगी इसको। तो इतनी फुर्सत कहाँ है भाई हमारे पास कि बस हम ये रिप्रेजेंटेशन बनाते रहें। एक बार आपने समझ लिया, दैट्स इट। ओके, लॉक किया जाए प्लीज। ओके माय डियर, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। सोना मत प्लीज, सोया तो नहीं कोई? हाँ, तो हमें भाई रिप्रेजेंटेशन से बहुत आगे जाना है बेटा, बहुत आगे जाना है। अभी जस्ट हमने शुरू किया था, तो हम चाह रहे थे कि भाई एक बार जरा समझ लिया जाए कि व्हाट्स द हेल गोइंग ऑन, राइट? इतनी टेंशन क्यों होती है स्ट्रक्चर देख के यार? हाँ बोलो, यस और नो? देखो, यस तो सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो मेरे लिए क्या है, लुईस या फिर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है ना भाई? इतनी फुर्सत मेरे पास कहाँ है ना, आपके पास है? क्या आप बैठ के आराम से बनाते रहो बैठ के? नहीं ना, एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट, दैट्स इट, फाइनल होगी बात। सो ये कौन सी है माय डियर, कौन सी है? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो अगर मैं डिकेन की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बोलूं कि लिखो, तो बस फिर 15 मिनट गए आपके। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में तो आती है प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है बोर्ड एग्जाम में। वो बोलता है एनसीईआरटी वाला कि भाई लिखो, तो ठीक है, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ऑलराइट? हाँ, तो कौन सी बात समझ नहीं आई थी? कौन सी बात समझ नहीं आई थी? ये वाली, दिस वन? सर ये लाइन रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो लाइन में मैंने समझाया था ना आपको कि एक मिथाइल जो है, जैसे ME में लिखता हूँ माय डियर, सो ये लाइन मैंने बना दी है, ये हमेशा जो टर्मिनल सिस्टम होता है वो क्या शो करता है? व्हाट डज दिस टर्मिनल इंडिकेट्स बाय द वे? ये जो माय डियर टर्मिनल है, टर्मिनल ऑलवेज एक्विवेलेंट टू अ मिथाइल ग्रुप, रिमेंबर? यस सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ IUPSC बहुत फास्ट चलेगा, बहुत फास्ट। इतना वेट नहीं करेंगे हम लोग कि ये सर क्या लिख रहे हो, बस लाइन फार्मूला लिखूंगा मैं। ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स चलेगा सब कुछ। ठीक, इतनी फुर्सत नहीं होगी हमारे पास कि हम इसको ऐसे बनाते रहे CH3 CH2, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा बेटा, नहीं तो पूरा मंथ गुजर जाएगा यूपीएससी में। ठीक है, तो प्लीज आप पहले क्लियर कर लो अपना, जो भी डाउट हो आप मुझसे डेली पूछो जब तक ये चल रहा है नोमेनक्लेचर, आई मीन कॉमन वाला चल रहा है, पूछो आप। तो टर्मिनल्स हो गए, ठीक है।
अब मैंने इसको कर दिया माय डियर क्रॉस, ये देखो अब ये जो ये है ये क्या है, क्रॉस है, राइट। और जहां पे भी क्रॉस आएगा या जिगजैग मोशन में, कार्बन राइट, वो हमेशा क्या शो करेगा, यस माय डियर, कार्बन एटम कार्बन एटम क्या शो करेगा। एंड ईच एंड एवरी कार्बन एटम मस्ट बियर अ टेट्राहेड्रल, यस माय डियर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप व्हाटएवर। ओके, आई बात समझ, ठीक है। तो इतना इजी होता है। अभी तो मैं आपको मॉडल के साथ मिलूंगा, मॉडल, ठीक है। ये सब जो आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो ना बोर्ड पे 2D में, आप मुझे बोलना कि सर ये मुझे इसका 3D चाहिए, मैं बॉल एंड स्टिक मॉडल लेके आऊंगा, पूरा 3D रिप्रेजेंटेशन बना के आपके हाथ में दे दूंगा, चलो भाई ये आप उसको घुमाते रहो देखते, ठीक है। तो 3D तो बेटा विदाउट मॉडल समझ नहीं आता, ठीक है। जैसे विदाउट कोई आपको 3D मूवी देखते हो ना, है ना, तो एक चश्मा देते हैं ना भाई वो, कि आप इसे आई मीन इसकी हेल्प से देख सकते हो 3D, वो 3 डायमेंशनल होता है। तो ऐसे ही है, फिर ये तो बोर्ड पे चल रहा है अभी। एनीवे, और कौन सा क्वेश्चन था आपका, कायरल, कायरल, ओके ठीक है। अब जल्दी से बताओ मुझे यस और नो, मैं इसके बारे में अब कुछ बोलूँ तो ना आगे बढ़ जाऊं, राइट, Yes, sir. कैन वी मूव अहेड, यस सर ओके। यस सर। तो आप देख सकते हो ये सारी रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगी हमारी, इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन थी, मैंने 5 नहीं पूरी 6 रिप्रेजेंटेशन ली है। और अभी जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना 3D, मैं इसको फर्दर 4 वे में डिस्क्राइब करूंगा। कितने वे लूंगा मैं इसके, 4, ये वाली, ये देख सकते हो आप फर्दर, ठीक है। रेस्ट एश्योर्ड वी विल टॉक अबाउट इट, दैट इज वी विल टॉक अबाउट 3D रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, ओके, जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में, रेस्ट एश्योर्ड, ओके डियर, ओके देन। सो नाउ एग्जांपल नंबर नेक्स्ट जो आपने मुझसे पूछा है वो क्या था, दैट इज व्हाट अबाउट कायरल। तो ठीक है, बता दो जल्दी से, व्हाट अबाउट इट, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ओके, एग्जांपल लिया है मैंने यहां से, दिस वन इज मिथाइल, यस प्लीज, सॉरी फॉर मिसप्रिंटिंग, एक तो 3D में यार टाइम बहुत लगता है, ठीक है। ये हो गया, राइट, ये हो गया माय डियर, दैट इज Br, ओके, ये हो गया यहाँ पे Cl। सो व्हाट अबाउट दिस सेंटर, बाय द वे, इज इट कायरल, लेट मी नो, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, इज इट कायरल, आई थिंक सो यस, इट इज कायरल। yes indeed, beyond any doubt, beyond any question, because this central carbon atom now consisting 4 different atoms or groups, am I right, ठीक है, all right, so it is, yes please, chiral, it is active, right, it is having stereogenic center, you got the point, ठीक है। तो अभी तो सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, जितनी टर्म्स यूज होती है ना सबको इंट्रोड्यूस करेंगे हम वन टाइम ओनली, बस, सो दैट आपका कोई क्वेश्चन ना बचे कि व्हाट इज मीन बाय दिस टर्म, ओके। तो देख लो हम कहां से शुरू किया था हमने, रिमेंबर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी से आ रहा हूं मैं, ठीक है, बताते बताते बेसिक बेसिक बेसिक, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ब्रिज हेड, राइट, स्पाइरोसाइक्लिक, ओके, फ्यूज्ड साइक्लिक, नाउ एन, आइसो, नियो, एमाइल, एक्टिव, कायरल, राइट, इन सबको इंट्रोड्यूस किया मैंने, ऑलराइट। फिर सारी रिप्रेजेंटेशन क्लियर है हम लोगों की, ठीक, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, व्हाटएवर 6 रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई, एनीवे, ठीक है। फिर सो बस ये अबाव बिलो देख के कायरलिटी डिसाइड मत कर लेना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट माय डियर। चलो लास्ट एग्जांपल और लिया, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ जल्दी से, ओके। ये अबाव बिलो देख के डिसाइड मत कर लेना, ओके माय डियर, कि सर ये तो अबव है और ये बिलो है, तो ठीक है, हो गया कायरल, इज इट कायरल, हाँ, इज इट कायरल, नहीं सर, ये नहीं है, बोलो, इसमें नहीं है वो, चार जो क्योंकि ग्रुप यहाँ है तो वो तीनों ही मिथाइल है different भाई, होने चाहिए इसमें से। और क्या है? अच्छा ठीक है, चलो फिर मैंने यहाँ Cl लगाया, नाउ इज इट कायरल, इज इट कायरल, अब देखो कंफ्यूजन होना शुरू हो गया, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और मेरा दोनों का, बोलो यस और नो, नहीं, इज इट कायरल, अभी भी नहीं है।
हाँ तो यार बोलते क्यों नहीं हो, फिर रिस्पॉन्स करो ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स दो तो सो दैट टाइम बचे हम लोगों का। यस प्लीज। सो इट इज नाउ नॉट कायरल, ओके, बिकॉज यहाँ पे दोनों मिथाइल के हैं डियर, सिमिलर ग्रुप्स है। आई होप सो नाउ इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव अहेड। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कौन सी कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था भाई, क्या करना है? यस प्लीज, अभी तो एल्कीनाइल बचे हैं। चलो आगे बढ़ो। क्या हो रहा है बार बार मेरे सिस्टम को? हाँ yes, so next one is that is B portion. Yes please. फर्दर हम कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले से हम के फेमिलियर, दैट इज नोन एज विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, प्रोपरगाइल। रिमेंबर? याद है या नहीं है? जल्दी बताओ। यस सर। यस प्लीज, तो जल्दी से फिर इसको फिनिश करो। एल्कीनाइल रेडिकल्स। यस प्लीज। व्हाट अबाउट द कॉमन नेम? चलो बताओ, मुझे कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम इक्वल्स टू, यस प्लीज, सबसे पहले तो ये हो जाएगा एल्काइल प्लस, यस प्लीज, आइल, है ना? एल्काइल नहीं यार, एल्कीन आएगा, है ना, क्योंकि इन यूज करना है ना। ऑलराइट, है ना? एल्कीन प्लस आइल, दैट इज नोन एज एल्कीनाइल। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। बस उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कुछ टाइम नहीं देना हमें, क्योंकि हमें समझ में आ गया सब कुछ। ओके चलो, लेट्स टेक अ फ्यू मोर प्रिसाइज एग्जांपल्स। So CH2 double bond CH2. All right. What about the IUPAC name, by the way? Ethane. Meth 8. How many carbon Ethane. atoms? 8. In. अरे यार इन आएगा ना, है ना? So 8 इन, इतना तो सिंपल है। एथीन। So what about the common name, by the way? Common name क्या होता है? इथाइलिन होता है। कॉमन नेम है इथाइलिन। ओके, इथाइलिन, right? So minus H, yes please, here is the CH2 double bond, yes please, CH single bond, any kind of attachment here. So what about the name? Name please, vinyl. Remember vinyl, it is quite important. ठीक है, विनाइल ग्रुप बोलोगे या नहीं बोलोगे इसको? मैंने इंट्रोडक्शन दिया था अच्छे से, रिमेंबर? नेक्स्ट CH3 CH double bond CH2, yes please, minus H, CH2 double bond CH single bond CH2, yes please, any kind of attachment. What about the name of it? Yes, Pentyl. pentyl. प्रोपोगाइल। What are you talking? Sorry, propanil. Propergyl, Pent तो 5 हो गया। propyl. Okay, propynyl. One another common name is very important, that is known as allyl. Remember? मैंने बोला था ये names, these names you must be kept in mind please. Phenyl, allyl, propergyl, benzyl. Okay. जितने कॉमन नेम्स आपके अच्छे से हो जाएंगे ना, तो स्पीड अप मैनर में आप नेमिंग कर सकते हो। फिर कॉमन नेम भी, राइट? उसके बाद में ड्राइव्ड नेम, फिर आईयूपीएसी नेम। तो एक कंपाउंड के एटलीस्ट 3 नेम्स तो हम लेके चलेंगे, और जब हो जाएगा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट देन विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, बस हो गया फिर, और क्या है? ठीक है। सो आफ्टर एलाइल नेक्स्ट वन इज एल्कीनाइल। ठीक है, सी। C portion, that is alkynyl radical. Yes please, what about the common name? Sir, can you please चलो बता दो scroll? जल्दी से। Yes please, last page. Yes, Okay. sir. Yes, sir. हाँ यहीं पे। हाँ dear, yes yes yes, Yes, sir. Sir, मुझे बस note down करना। okay okay, this one is the allyl vinyl. Okay, Yes, sir. and next group, that is propergyl. All right, so what about the common name? alkyne plus आइल।
ओके, एल्काइनाइल, ठीक है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ से, दिस वन, here is CH3 CH triple bond CH. Okay, what about the name? Meth 8 prop, तो प्रोपाइन हो जाएगा ना. What about IUPAC name? 3 carbon atoms we have to put, that is prop. Okay, prop लगाया प्रीफिक्स में, ठीक है. ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन हो गया और क्या, ठीक है, -H. Now CH triple bond CH single bond CH2, yes please, and here is attachment. So yes please, this carbon atom is allyl and this carbon atom here, yes my dear, this carbon atom or this position, this asterisk position is known as, yes please, propergyl. What? Propergyl. Quite simple. So now you are familiar with these terms, that is vinyl, allyl, propergyl. Is that okay? Okay. Yes. All right. So after these terms, okay. Now up next is a note. This one is a note. अभी कुछ और टर्म्स में यूज करूं, ठीक है, उसके बाद में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, क्योंकि तो आई मीन क्लियर भी होगा आपका जो मैंने अब तक डिस्कस किया, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में पहले भी आता होगा. ओके, सो नोट, अटेंशन प्लीज. केस ऑफ पॉलीवेलेंट रेडिकल्स. पॉलीवेलेंट रेडिकल्स, ऑलराइट. सो पॉलीवेलेंट में आप एक केस ले सकते हो, दैट इज CH3 राइट, -H formation of CH3 CH2, alright. This one is further -H. Polyvalent means we have to replace more than one hydrogen atom, right? Then CH3, here is the CH, alright. This one is known as bivalent. Once again -H. So here is, that is CH3C, 1 2 3, right? We have replaced 3 protons. So this one is known as, yes my dear, trivalent. So this one is monovalent, right? It is formed by the replacement of single hydrogen atom. It is known as, yes please, bivalent, all right, and it is known as, yes my dear, trivalent, all right. So what about the common names, right? What about the common names? So first of all, this name is, that is known as ethyl, as you know very well according to our previous knowledge. Ethyl, this one is ethylidene. What? Ethylidene. Ethylidene. Okay. This one is known as, yes please, ethylidine. So this one is very important. ठीक है, कोई ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हम आयन यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. सो इट इज मोनोवेलेंट, bivalent, trivalent on basis of replacement of hydrogen atoms. That is, when we replace one hydrogen, monovalent. When we replace 2 hydrogens, bivalent. In case of 3 hydrogens, trivalent. ठीक है. Now aromatic radicals. It is quite important now. Aromatic. ठीक है. Now case of B. That is aromatic. And your first favorite compound, that is known as benzene. Yes or no? Aromaticity clear हो गया सबका? क्यों भाई? Aromaticity clear हो गया? Yes sir. हाँ, तो एक बार उसको रिवाइज करो प्लीज, क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी फिर, मतलब अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो. ओके नाउ, सो एरोमेटिक रेडिकल्स. Here is first example, your favorite one, that is benzene. So let's draw some aromatic radicals.
right? So first compound we are going to talk about, that is benzene. तो बेंजीन से अब देखो मैं कितने रेडिकल्स बना देता हूँ, ठीक है? बेंजीन कंसिस्टिंग 6 हाइड्रोजन एटम्स, एम आई राइट? तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि सब कुछ ये तो आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब आते ही। नाउ introduction of a few new terms, that is ortho, meta, para, ipso, am I right? So here is, if you replace one hydrogen, then formation of this type of species, am I right? Yes, please, attachment. And if you talk about abbreviated form, then C6H5, this one. And what about the ultimate name? Phenyl. Remember, this one is known as the phenyl. Anyway, right? If you replace 2 hydrogen atoms, so what would happen? What would happen then? We can use here 3 terms. That is, first way may be 1, 2. Please attention. ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, I mean जो एरोमेटिक कंपाउंड्स आप डिस्कस करोगे वहां पे इसको यूज करना है। ऑलराइट माय डियर, सो दिस वन इज लाइक दिस। ओके, कितने हाइड्रोजन बाकी है यहाँ पे? वही 4। आप शो करो ना करो, इट डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, बट वी हैव रिप्लेस्ड 2 प्रोटॉन्स। सो दिस पोजीशन इज नोन एज, यस माय डियर, ऑर्थो एंड, यस प्लीज, ऑर्थो एंड पैरा। हाँ, तो इनको नेमिंग कर दो आप यहाँ पे 1 and 2, ठीक है? सो दिस वन इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो, राइट? ऑर्थो और यस प्लीज 1, 2, राइट? क्योंकि उनकी उनमें जो रिलेशन है वो क्या है? 1, 2 है, जो रिप्लेसमेंट किया आपने, राइट? सो इट इज नोन एज ऑर्थो और 1, 2। नेक्स्ट, राइट, यहां से रिप्लेसमेंट कर दिया है, इस बार पोजीशन थोड़ी मैंने चेंज कर दी है, और पोजीशन कौन सी कर ली है? दैट इज 1, 2, 3। दिस पोजीशन इज नोन एज, यस माय डियर, मेटा। सो मेटा पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज, यस प्लीज, 1, 3, 1, 3 पोजीशन। ऑलराइट, सो 1, 2 पोजीशन, 1, 3 पोजीशन, एंड नेक्स्ट इज, यस प्लीज, 1, 4 पोजीशन। जब भी बेंजीन रिंग होगा, वी हैव टू यूज दैट इज ऑर्थो, मेटा, पैरा, अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन, राइट? सो बस 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं बेंजीन में, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हो ना भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर, रिमेंबर द डोपा, ओके? ठीक है ना? तो ये जो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन है वो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज द एरोमेटिक रेडिकल्स। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको भी फिनिश करो जल्दी से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्या हो जाएगा? दैट इज पोजीशन पैरा। ऑलराइट माय डियर, जिसमें फार अपार्ट पोजीशन है वो कौन सी है? फार अपार्ट पोजीशन समझते हो ना? विच वन इज द फार अपार्ट पोजीशन आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज? बोलो, फार अपार्ट। थर्ड 1, 2, 3, 4, दैट इज 180 फार अपार्ट, एम आई राइट? Yes, sir. कितना एंगल है इनमें? 180 है ना? ओके देन, हाँ, ओके, तो हम इसको यूज करेंगे माय डियर बेंजाइन इंटरमीडिएट में। कहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं सब कुछ? बेंजाइन में, ठीक है? और बेंजाइन में मैं क्लेम करूंगा कि 2 anions formed must be far apart, right? That is 180 degree far apart, okay? So this one is also known as 1, 4, okay? So I hope so ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं एक और टर्म यूज कर सकता हूँ, दैट इज फिनाइलिन, ऑर्थोफिनाइलिन, मेटाफिनाइलिन एंड पैराफिनाइलिन। ओके माय डियर, these are the positions. I hope so now it is clear. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज नोन एज द टोल्विन। बस उसके बाद में सर ऑर्गेनिक पैरा से आगे भी कोई टर्म होती है? हाँ, एक और होती है, दैट इज नोन एज इप्सो। वी विल इंट्रोड्यूस इप्सो इन केस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म नोन एज SNAR, ठीक है? हालांकि वो 12th में ज्यादा आता है, चलो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फिर भी। राइट माय डियर, देखो क्या होता है, अटेंशन डियर। एक और टर्म आएगी, दैट इज नोन एज
हाँ एक क्या दो आएंगे, चलो मैं भी बता देता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तो क्या है, बेसिक तो बेसिक है, क्यों भाई। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे आओ, यस प्लीज। ये टर्म आ जाएगी माय डियर, ये आ गया क्लोरीन, ओके। और यहाँ पे मैंने कोई भी लगा दिया है ग्रुप, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, प्लीज पे अटेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर सब्स्टिट्यूशन। सबको पता होगा सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट, है ना। वी हैव टू रिप्लेस एनीथिंग विद अनदर काइंड ऑफ स्पीशीज। तो ये क्या है Cl, यहाँ पे Cl क्या है भाई, लिविंग ग्रुप है या नहीं है? लिविंग ग्रुप का तो पता ही होगा, हाँ। अरे माय डियर, लिविंग ग्रुप होता है जिसको हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप है, यस सर। ओके बच्चे, ये लिविंग ग्रुप है। ये जो कार्बन मैंने हाईलाइट किया है ना यहाँ पे, बस इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इप्सो पोजीशन। क्या नाम है इसका, इप्सो, इप्सो पोजीशन, दैट्स इट, हो गया क्लियर, कुछ नहीं होता इप्सो। एग्जैक्ट पोजीशन वही होती है जो आपको रिप्लेस करनी है, राइट। सो व्हेन द लिविंग ग्रुप अटैच, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक करेगा, कहाँ पे, इप्सो पे ही। तो इप्सो वही पोजीशन होती है जहां से लिविंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, दैट्स इट। एनीवे, अभी तो आप इतना समझ लो फॉर इंस्टेंस, ठीक है। और क्या बोल रहा था मैं इप्सो के बाद, और कौन सी टर्म बोली थी मैंने, कुछ और बोला था? नो हाँ सर, सिम यार, इप्सो ही अरे बोले। सिम, सिम बोला था यार, सिम। नहीं सर, सिम नहीं बोला था आपने। तो ठीक है, अब बोल दिया, क्या फर्क पड़ा, है ना। देखो ये बोल दिया मैंने, ये हो गया। मैंने यहाँ पे 3 मिथाइल्स लगा दिए, ओके माय डियर। नेम क्या हो जाएगा, चलो कॉमन नेम बता दो आप। ट्राईमिथाइल बेंजीन, हाँ या ना भाई, इतना तो समझ में आता है ना, 3 मिथाइल्स है। 3 के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, यस सर। ट्राई। ट्राई। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। 5 के लिए पेंटा, 2 के लिए डाई। इट इज क्वाइट सिंपल, ये तो सबको पता है। सो इट इज नोन एज, यस प्लीज, सिम कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, सिम, सिम ट्राईमिथाइल, यस प्लीज, सिम ट्राईमिथाइल बेंजीन। इज दैट ओके? तो सिम मीन्स व्हाट इज मीन्ड द टर्म सिम हियर, सिम मीन्स सिमेट्रिकल एंड नथिंग एल्स, ओके माय डियर। सिम मीन्स सिमेट्रिकल। तो एक बार जरा नेम क्लियर तो कर लो, फिर बताना, ठीक है, ओके। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बाद स्पीड अभी तो 2G है, 3G में पहुंच जाएंगे तुरंत। फिर नेम, हम अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की थोड़ी नॉलेज रखेंगे तो 4G प्लस हो जाएगी स्पीड, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक। बस क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ज्यादा कुछ मुझे करना नहीं है, ठीक है। बस एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। बाकी सारा कॉमन सिस्टम ये इतना ही काफी रहेगा, जितना भी डिस्कस करें। तो सारी पोजीशंस क्लियर होगी, एक बार फिर से देख लो आप। ऑलराइट माय डियर, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इप्सो, ऑलराइट, सिम, सारी कंडीशंस क्लियर हो गई। नॉर्मल, नियो, एमाइल, एक्टिव, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार रोज आते हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ा के चले जाते हैं, इतनी सारी टर्म्स रोज देते हैं। अरे इसको पेरोडी नहीं लगानी है, रेस्ट एश्योर्ड। मैं इतने एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट कि बार बार रिपीट होगा, ओके, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर, ओके। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट, राइट, टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ है नहीं है, सिर्फ वो आयनिक केमिस्ट्री है। मैंने ऑलरेडी बताया था, एक ही लेक्चर में समझ में आ गया था सब, कि बस उसमें हाउ टू मेक a molecular formula and how to break a molecular formula, right, according to the knowledge of ions, that's it। ये इनऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक थोड़ा सा आई मीन क्वाइट टीडियस है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नोमेनक्लेचर हमें थोड़ा नया लगता है, कुछ बच्चों को अजीब लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, बट प्लीज आप एक बार इसको आप नोट डाउन करो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आगे बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी शुरुआत है, सारी पोजीशंस क्लियर हो गई, जल्दी बताओ यस और नो, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, है ना, ओके। सो ठीक है, एक टर्म और यहाँ पे यूज होगी, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, स्टॉलविन, ठीक है। तो टर्म्स काफी इंट्रोड्यूस मैंने कर दिए, काफी किया, मैं कुछ छोड़ ही ना रहा हूं उसमें, सारी टर्म्स मैंने यूज कर ली जितनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स टॉक अबाउट
केस ऑफ टॉल्विन, राइट। मैंने ये सब नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी, आई मीन क्लासिफिकेशन में सब कुछ बताया हुआ है। CH3 इसका नाम क्या होता है माय डियर? टॉल्विन। और क्या बोलोगे आप इसको? अकॉर्डिंग टू ओन प्रीवियस नॉलेज, मिथाइल बेंजीन बोलोगे या नहीं, है ना? मिथाइल बेंजीन बोल दोगे जितना आपको प्रीवियस नॉलेज है। ओके माय डियर, ठीक है। नाउ स्टार्ट करो जल्दी से। हाँ, यहां से करना क्या है मुझे? -H, ओके, -S सिस्टम की है मैंने। सो फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू काइंड ऑफ एराइल, यस प्लीज, रेडिकल। ओके, ये बन गया माय डियर एरोमेटिक रेडिकल, एराइल रेडिकल आई मीन। ओके, व्हाट अबाउट द पोजीशन? दिस एस्टेरिक पोजीशन इज नोन एज, फिल इन द ब्लैंक, बोलो जल्दी। ठीक है, बताओ, मैंने इतनी बार नेम बताया हुआ है यार। ब्रेक द साइलेंस, बोलो जल्दी से। कैन यू हियर मी? यस। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज इग्नोर। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद खुद ही लिख देंगे, है ना? अरे ट्राई तो करो। इतनी बार मैंने नेम दिया, इंट्रोडक्शन मैंने क्या क्या दिया था, बोलो। मिथाइल, सॉरी विनाइल से स्टार्ट करते हैं। विनाइल, एलाइल, प्रोपेगाइल, बेंजाइल, रिमेंबर? तो क्या ये बेंजाइल है? बोलो। द विनाइल। रिवीजन में विनाइल कहां से आएगा माय डियर? विनाइल तो ये होता है। दिस वन इज नोन एज विनाइल, दिस वन इज बेंजाइल। अरे भाई, बेंजीन कंसिस्टिंग स्पीशीज है। हाँ, इतना स्लो चलेगा? हाँ, इट इज नोन एज बेंजाइल। इतनी बार मैंने नेम लिखा है इसका, राइट माय डियर? ओके, दिस स्पीशीज इज नोन एज बेंजाइल। ठीक है, ऑल राइट देन। सो इफ यू रिप्लेस 2 हाइड्रोजन्स देन द स्पीशीज, यस माय डियर, नोन एज, इसका क्या नेम हो सकता है? बेंजल। व्हाट? बेंजल। सो इट इज अ बाइवेलेंट स्पीशीज, राइट? बाइवेलेंट रेडिकल हो गया है, इजंट इट? बाइवेलेंट हो गया। Now, last but not the least, what about the name of this trivalent radical? This one is carbon. Okay, my dear. Here is 1, 2 and 3. So मैंने 3 के 3 प्रोटॉन यहां से रिप्लेस कर दिए। बेंजल के बाद इसका नेम हो जाएगा, दैट इज बेंजो। क्या नेम हो गया? बेंजो। सो बेंजाइल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जो बार बार आएगा? ये आएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अभी ऑर्थोमेटा पैरा कर लो अपनी आप, ये तो सबको आता है समझ में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ, मतलब ऑर्थो। फिर शॉर्ट में मैं लिखने वाला हूँ दैट इज पी, है ना? दैट इज नोन एज पैरा, या फिर मैं चलो मेटा ही कर लेता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से लेते हैं। ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। सो इट इज, यस प्लीज, मेटा, and this one is para. All right my dear, so इसकी abbreviation है OMP, indicating ortho, meta, para positions respectively. All right, so all right, ortho, meta, para कैसे करेंगे? मिथाइल रहने दो यहीं पे, ठीक है, क्योंकि रेस्पेक्ट तो लेना पड़ेगा। क्यों डियर? रेस्पेक्ट तो लेना पड़ेगा ना, यहां से रिप्लेसमेंट कर दो आप। ठीक है, मेटा पोजीशन पे क्या होगा? 1, 3 पे हो जाएगा। जब ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा ना, सबसे बोरिंग कॉन्सेप्ट यही होगा। बोलोगे सर लिखना बंद करो प्लीज, आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लो। ठीक है, इतना बोरिंग हो जाएगा बाद में, कभी आप जिक्र करना पसंद नहीं करोगे कि बहुत हो गया सर बस अब, है ना? मैं यही चाहता हूँ बस, देखता हूँ कब तक आप बोलते हो। ओके, सो ऑर्थो, मेटा, पैरा। जब भी इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्थो, मेटा, पैरा, राइट, हाउ मेनी ग्रुप्स और एटम्स वी नीड टू रिप्लेस? एटलीस्ट 2 ना, कम से कम 2 रिप्लेस करने पड़ेंगे ना डियर, तभी तो आप पोजीशन लोगे ना 1, 2, 1, 3 और 1, 4। इज दैट ओके? ठीक है, सो ऑर्थो, मेटा, पैरा हो गया।
तो इसका नाम टोलाइल होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोटोलाइल। इसका क्या हो जाएगा माय डियर, मेटाटोलाइल। सर कैन यू प्लीज इसका क्या हो जाएगा, जो आपने अभी अभी बोला था पैराटोलाइल। हाँ डियर, सर, मैं कैन तो यू बोलता ही रहता हूँ, क्या बोला था मैंने, भी हमें तभी सॉरी। दो लेंगे तभी तो हम दिखा हाँ पाए। हाँ, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। यस प्लीज, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ब्रेक द साइलेंस। जितना आप बोलोगे मैं एग्जांपल का जो जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बढ़ाता जाऊंगा मैं, ठीक है। सब समझ में आएगा एंड टू एंड। कुछ भी प्लीज रिजर्व मत रखो कि एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया बाद में पूछूंगा, नहीं प्लीज अभी पूछो आप। इतनी फुर्सत नहीं है, इसकी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आई होप सो। यस, इफ यू टॉक अबाउट ऑर्थो मेटा पैरा, राइट, इफ यू टॉक अबाउट ऑर्थो मेटा पैरा, तो सबसे पहले तो मुझे बेंजीन लेना पड़ेगा। यस और नो माय डियर, जल्दी बताओ प्लीज। सबसे Yes. पहले मुझे बेंजीन लेना पड़ेगा, ये मैंने ले लिया बेंजीन, तभी तो मैं ऑर्थो मेटा पैरा कर पाऊंगा ना डियर। तो एक बार मुझे पोजीशन कुछ भी लगा हुआ, आर लगा दिया और फिर यहां से इसको ऐसे लिख देते हैं, दैट इज नोन एज आर प्राइम। व्हाट डज इट इंडिकेट, राइट। सो फर्स्ट पोजीशन तो ये हो गई, जो भी है वॉट एवर इट वुड बी, डजंट मैटर। एंड सेकेंड पोजीशन क्या हो गई, ये तो अनडिफाइन है, राइट। सो आर प्राइम, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ आर प्राइम। नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, इट मे बी 1 2 इन रिलेशनशिप, इट मे बी 1 3 और इट मे बी 1 4, क्योंकि पोजीशन कितनी बताई है मैंने, सिर्फ 3। यस और नो, Yes. राइट माय डियर। तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो जब भी न्यूक्लियस से अटैचमेंट होगा, व्हाट डज इट इंडिकेट बाय द वे, हाँ। सो इंडिकेशन रहेगा, इट मे बी ऑर्थो और इट मे बी मेटा और इट मे बी पैरा। तो अब इसको हम ऑर्थो मेटा पैरा कर लेते हैं। आई होप सो, तो क्लियर हो गया होगा, राइट। इफ यू टॉक अबाउट Yes. ऑर्थो रिलेशनशिप, देन वी हैव टू पुट, यस माय डियर, आर प्राइम एट 1 2 पोजीशन। यस और नो, ये 1 2 हो गया, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 1 3 पोजीशन। ये कौन सी हो जाएगी माय डियर, 1 4 पोजीशन। बस फिर, ठीक है, ये बोला मैंने। नाउ यू गॉट इट, ओके। Yes. आई होप सो जितना नोमेनक्लेचर था ये सब क्लियर हो गया होगा हैंड टू हैंड। हाँ, कुछ टर्म्स में प्रॉब्लम हुई होगी, आपको लग रहा होगा कि इसको मेमोराइज कैसे किया जाए। सो देयर इज नो नीड ऑफ मेमोराइजेशन, ऑलराइट। बस एक बार आप इसको नोट डाउन ऐसे ही कर लो, जैसे मैंने बोला, एक बार नोट डाउन करो प्लीज, प्रैक्टिस कर लो। मैं और एग्जांपल लूंगा, आईयूपीएससी में रिपीट होगा बहुत कुछ, क्योंकि अभी तो मैं कॉमन नेम ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आईयूपीएससी नेम लूंगा, फिर कौन से लूंगा, ड्राइव्ड नेम लूंगा। तो 3 नेम्स हो जाएंगे। एनीवे, नेक्स्ट, सो आफ्टर इंट्रोडक्शन सर ऑफ दीज बाकी सब टर्म, बाकी सब में भी न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। जैसे ऑब्वियसली, इस वाले एग्जांपल में न्यूक्लियस से अटैच्ड दिखाया है। यस। एक्चुअली माय डियर, इफ वी टॉक अबाउट द पोजीशन, राइट, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो मेटा पैरा है क्या, रिलेशन है ना। व्हाट अबाउट द ऑर्थो, 1 2 रिलेशन, व्हाट अबाउट मेटा, 1 3 रिलेशन, व्हाट अबाउट पैरा, 1 4 रिलेशन, right? So at least we need di-substituted benzene ring. Are you getting what I'm talking about? At least we need di-substituted benzene ring, right? Di-substituted means अरे 2 ग्रुप लगे होने चाहिए ना यार, और क्या है, क्यों भाई। अगर मैं टॉलुइन की बात करूं, हाँ 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 और जो एक है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट वाला था, जो हाँ, CH3 बिल्कुल, है वो तो स्टार्टिंग हाँ प्रेजेंट वाला था हाँ वो। हाँ, तो हमें एक चाहिए फिर, राइट, है ना। Yes. तो हमें एक चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। सो टॉलविन को क्या मैं ऑर्थो मेटा पैरा बोल सकता हूँ, नेवर, क्योंकि मेरे पास कोई रेस्पेक्ट है ही नहीं। इन विच रेस्पेक्ट यू हैव टू टॉक, राइट, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, रिलेशनशिप किस में आएगी बोलो, है ना। हाँ, एक बात और है, we can explain relationship with respect to the proton. This proton is ortho, this proton is meta, and this proton is para. You got the point, my dear? जल्दी बताओ, yes or no? Yes. बस yes या तो no, Yes. ठीक है। If yes, then we can proceed next. If no, we have to take another example. Yes sir, got it. बस फिर हो गया फाइनल। इसीलिए तो बोलता हूँ मैं कि नोमेनक्लेचर बस वन टाइम, एक बार अगर समझ में आ गया, कुछ नहीं करना बस हमें, ठीक है। स्ट्रक्चर अपने आप लिखे मिलेंगे सारे वहीं पे एग्जाम में, ठीक है ना। बस हमें रिकॉग्नाइज करना है भाई क्या चल रहा है, रिलेशनशिप इसमें क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, दैट्स इट।
Anyway, so next one is third. So after ortho, meta, para, ipso, sim terms, right? ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी का आई मीन एक बार चार्ट बना लो अपना माय डियर। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, देन ब्रिज हेड, देन स्पाइरो, देन फ्यूज्ड, गॉट इट। उसके बाद हमने कौन सा इंट्रोडक्शन दिया? एन, आइसो, एमाइल, एक्टिव, काइरल, नियो, आर यू गेटिंग? इसके बाद क्या इंट्रोडक्शन दिया? ऑर्थो, मेटा, पैरा, राइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, बेंजाइल, ठीक है, ओके। तो बस किसी दिन कोई अच्छा सा दिन निकालते जब आपके एग्जाम पूरे हो जाएंगे, और बैठूंगा मैं ऐसे पूरे दिन, ठीक, और बस मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहना, सब रिवीजन हो जाएगा विद इन एन आवर, ठीक। एक चैप्टर में 1 घंटा लगेगा बस, ज्यादा नहीं, ठीक है डियर। सो रेस्ट एश्योर्ड प्लीज, अभी बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में 11th क्लास का जो बैच होता है वो आई मीन छोटी सी बुक से शुरू करते हैं, वो अपनी एनसीईआरटी क्यूट सी बुक है, जितने क्यूट आप हो, तो उसमें तो इतना कुछ होता नहीं है, 4-5 पेज में एक चैप्टर फिनिश हो जाता है, तो बच्चे बड़े खुश होते हो यार केमिस्ट्री तो बहुत छोटी सी है, इतनी छोटी सी बुक है बस। बट जैसे आती है नंबर बेसिक का, फिर कंटेंट बढ़ता चला जाता है, तो कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे काफी एग्जांपल दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले लेंगे, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिवाइज इट, ओके, थोरोली, ओके। नाउ सी, इसको फिनिश करते हैं, लेट्स फिनिश द जॉब। सी पोर्शन है दैट इज एलिसाइक्लिक, रिमेंबर पहला कौन था? एलिफेटिक, देन एरोमेटिक, देन एलिसाइक्लिक। सो लेट्स फिनिश द जॉब with alicyclic radicals, all right my dear, ठीक है। one example would be enough, so example number 1, yes please, cyclopropane। चलो, तो मैं लाइन फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ओके माय डियर, दिस वन इज द साइक्लो। हाँ, ये टर्म भी मैंने यूज की थी, रिमेंबर, we have to put prefix as cyclo in case of cyclic compounds, remember, okay dear, right? Okay then, so cyclo, how many carbon atoms are there by the way? 3, so prop, cyclo, prop, right? Entire system consisting single bonds only, right? We have to put suffix as an, yes or no? इससे सिंपल और क्या होगा? कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में चलना है, जब भी साइक्लो लिख दो जल्दी से, राइट डाउन साइक्लो, देन वी हैव टू काउंट कार्बन नंबर्स, 3 कार्बन एटम्स पुट फॉरवर्ड, दैट इज प्रॉप। व्हाट अबाउट नाउ सफिक्स? सिंगल, इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड इन, हो गया साइक्लोप्रोपेन। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस? साइक्लोब्यूटेन। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस? साइक्लोपेंटेन। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस? साइक्लोहेक्सेन। सीरीज है भाई, पूरी सीरीज। तो जब मैंने क्लासिफिकेशन दिया था ना, मैंने सारी सीरीज डिटेल में ली हुई है, राइट। सो प्लीज एक बार अब उसको रिवाइज करो, राइट, इट वुड बी फॉर बेटर एंड कन्वीनियंट, एनीवे। सो ठीक है, जल्दी से एच को रिप्लेस करो, क्या बन जाएगा? मोनो, दैट इज मोनोवेलेंट रिप्लेसमेंट, ऑलराइट माय डियर, मोनोवेलेंट, ओके, एलिसाइक्लिक रेडिकल, ओके फाइन। देन फर्दर, चलो फर्दर कर दो, ओके माय डियर, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, दैट इज नोन एज बाइवेलेंट, ओके, बाइवेलेंट। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस? ये तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया ना, साइक्लोप्रोपेन से क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपाइल बन जाएगा, ओके, और ये साइक्लोप्रोपाइलिडीन बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइलिडीन, राइट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऑलराइट माय डियर, ऐसे लिख सकते हैं ना, देयर इज नो हाइड्रोजन एट ऑल, कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, ठीक है। सो इट इज बाइवेलेंट, ओके। इफ वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन ओनली, राइट, then the radical formed is known as monovalent,
एम राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब 2 का रिप्लेसमेंट होगा डाइवेलेंट, 3 का होगा ट्राइवेलेंट, सिंपल। सो इन दिस वे ये हो गया फाइनल तुम्हारा। ओके, कुछ समझ में आया रेडिकल के बेस पे हम कैसे नेम देते हैं, और रेडिकल को नेमिंग कैसे करते हैं, नेम क्लियर है? हाँ, ओके, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज दैट इज कॉमन नेम्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके बाद में वाइंड अप करते हैं फिर। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बस, क्योंकि अदरवाइज मैं इसको टॉपिक को शुरू करूंगा तो फिर मुझे बनाना लग जाएगा। तो प्लीज आप रिवाइज करो लेक्चर नंबर 1 to 5। आज 5th लेक्चर है, तो 5 के 5 आप रिवाइज करो। ओके, किसी को डाउट हो, आई मीन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यू कमर्स हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए? हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया हो? फर्स्ट टाइम भी आया हुआ तो इट डजेंट मैटर, बहुत ज्यादा डीप, आई मीन बेसिक काफी ज्यादा लिया है मैंने, तो समझ में तो सब कुछ आ गया होगा। इवन इफ कोई डाउट है तो प्लीज नोट दैट डाउन। ओके, राइट माय डियर, ऑल राइट देन। सो नेक्स्ट वन इज दैट इज क्लासिफिकेशन नंबर सी। Okay, and classification common names based on functional groups. Common names based on functional groups. As I already told you, we can further classify functional groups into 2 categories, right? First category is terminal functional groups. Terminal functional groups, and second category, yes my dear, non-terminal. You can call them that is internal. Okay, this one is terminal, then we can call them that is internal. Okay, non-terminal functional groups, right? So ये तुम्हारा होमवर्क है, right? कल इसको आप अच्छे से स्टडी करके आओ। मैं कल इसको ट्राइबल नेम, आई मीन जो ट्राइबल नेम था ये तो ऑलमोस्ट फिनिश है। ठीक है, फिर ड्राइव्ड नेम और आईपीएस स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? ओके, so thank you so much for your kind attention. See you Thank you, sir. tomorrow. थैंक यू Okay my dear. गुड नाइट सर। सर क्या होमवर्क है, ये Okay, लेक्चर sir. को रिवाइज करना है या टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप को? इसको ये होमवर्क है, दैट इज लेक्चर नंबर 1 to 5। ओके, कंप्लीट रिवीजन चाहिए। एंड इसके बारे में राइट, थोड़ा सा इसमें कोई रिवाइज। डाउट इस, हाँ तो ठीक है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि आगे क्या होगा फिर आईयूपीएससी में मैं बिल्कुल भी कॉमन नेम के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, अपने आप आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, खुद कॉमन नेम लिखोगे, खुद ही ड्राइवर नेम लिखोगे, बस मैं आपकी हेल्प किस में करूंगा, आईयूपैक नेम में। ठीक है ना, सो प्लीज रिवाइज करो आप अच्छे से। ओके ओके सर। ओके सर, ओके देन, सो सी यू टुमारो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल देन। ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट सर। ओके माय डियर, गुड नाइट।